Hi guys. Hello everybody. काजू विद बर्फी। अरे क्या किस चीज़ की याद दिलाती लॉकडाउन के अंदर, ये कितनी गलत बात है यार। अत्याचार है ये। काजू विद बर्फी क्या? काजू विद बर्फी का अत्याचार है, एक्चुअली हमारे साथ अत्याचार है। हाय आशीष। हाय अनीता। हाय गाइस। जो भी लोग लाइव आ गए हैं, वशिष्ठ, अनुराग वशिष्ठ, हाय अगस्त्य। हाय मांशु। we're 23, 22. Alright, so hi guys. जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम है डॉन। एक्चुअली नहीं, मैं डॉन नहीं है। Alright, so my name is Madhur. I am the founder of startup.fyi and welcome to Startup Nights with Madhur. फिर से स्क्रिप्ट खराब हो गया, मुझे याद करना पड़ेगा। एंड आई रियली नीड अंकुश योर हेल्प इफ अंकुश इज लाइव। सो अंकुश का मुझे हेल्प चाहिए स्क्रिप्ट याद करने में, मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं हो रहा है। सो वेलकम टू स्टार्टअप नाइट विद मधुर, a session where we take a lot of questions that relates in connect to the startups. यहाँ पे हम बहुत सारी बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, रोज़ करते हैं एक्चुअली। तो मुझे कुछ लोग, कल हमने एक सेशन किया था जिसमें मुझे आके ये कहा गया कि सर आप छुट्टी कब लेते हो। तब लाइक कि हाँ क्वेश्चन तो अच्छा है बट नो, आई वेरी रेयरली टेक अ छुट्टी। मधुर वाटा मधुर कुछ भी, हाँ मतलब वैसा ही हो जाता है। स्क्रिप्ट ऐसे ऐसे ही मैं भी स्क्रिप्ट भूल जाता हूँ, सो आई एम नॉट अ स्क्रिप्टिंग गाय, बट ठीक है। ऑलराइट, सो टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू टेक लाइव तुषार. He runs a consultancy company called Consultancy Ventures, right? So, and he helps a lot of startups in creating the documents, NDAs, compliances, structures, fundraising, और बहुत कुछ ऐसा, right? So, I was like कि क्यों नहीं लाइव लेके आते हैं और लाइव आके थोड़ा डिस्कशन करते हैं और ज़्यादा डिस्कशन करते हैं स्टार्टअप फंड रेजिंग के ऊपर। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि स्टार्टअप फंड रेज कब होगा, कैसे होगा, और कुछ भी एनीथिंग। एंड we can get a lot of his expertise and his experience also onto the table, so can be really handy for you guys. So be ready. Startup की बात शुरू। क्या था वो लाइन? Hi Ankush, I was actually missing you because I lost the script today again. So I was actually thinking that if you can help me out in learning the script. Hi Tushar, how are you? I can't hear you, Tushar. I can't hear you. I cannot You hear hear me now? you. Yeah, I can hear you now. Yeah, okay. So thank you so much for having me on your Thanks. show today. Thank you so much. Thanks a I lot for was joining me. looking to speak to you today on your show. So हम लोग यहाँ पे thanks for calling it the show. Actually I'm actually working on to create a show for this thing. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नाम सजेस्ट किया, स्टार्टअप नाइट्स विद मधुर, मधुर व्हाट अ मधुर, वर्ड्स ऑफ स्टार्टअप और पता नहीं क्या क्या नाम। तो वी विल जस्ट इन अ मोड टू सेलेक्ट द नेम। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं रोज स्क्रिप्ट भूल जाता हूँ। मुझे रोज ये लोग याद कराते हैं कि वो ओपनिंग स्क्रिप्ट क्या है और क्लोजिंग स्क्रिप्ट क्या है, तो वो रोज मैं भूल जाता हूँ। बट थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। तो My pleasure. बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एंड बहुत सारी चीजें probably we can talk about it. But first let me ask you, I mean, you share it about your consultancy ventures also a little bit, so that people can get to know about these things, and then probably we can jump into it. So I started consultancy ventures when I saw the startups getting so much hassled and the funds also getting hassled. So I was since I in my corporate journey I had been in Deloitte and Touche, I had been in Brand Capital, I had handled billion-dollar treasuries. So I used to see the fund guys who were my friends and they were hassled कि अच्छी deal कैसे मिले। और स्टार्टअप से व्हेन वी टॉक टू द स्टार्टअप, तो स्टार्टअप कहती है सर अच्छा फंड कैसे मिलेगा। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कंसल्टेंसी वेंचर्स इन 2014 and by the grace of God have closed more than 15 deals in the last 2 years and closely networked with more than 325 funds and the journey has been very nice. Have met very nice, very professional and nice people, and chal raha hai. So helping startups, helping funds gain access to each other in the तो in a बहुत good in a good manner. तो बहुत सारे लोगों के क्या कहते हैं वो उसको, वो एक ऐड आता है ना कैडबरीज का, मन में लड्डू फूटा टाइप हो गया होगा। आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग कि कोई आ गया जो फंड करा सकता है।
वैसा होता है तो एक मीटअप में हमारे पहले क्या कहते हैं, ऑफलाइन मीटअप हुआ करते थे उस जमाने हम्म, में, जब जमाने में कोविड नहीं हुआ करता था। तो उसमें देयर वाज आई कैन रिकॉल इट, तो देयर वाज दिस मीटअप, और उसमें सब इंट्रोडक्शन कर रहे थे। So there was this हम्म, guy who came late, actually काफी late, and I just asked him that, please share it, what do you do? He's like, uh, uh, I don't know क्या नाम था उसका। He said कि यार, this is my name and I invest in startups. And then everybody was like, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, सब उधर देख रहे थे। तो ऐसा था। so ये एक्चुअली स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा होता है, मैंने तो बहुत देखा है। लाइक यू आल्सो मस्ट हैव सीन इट कि स्टार्टअप में जहाँ हाँ, पे आप बात कर दो इन्वेस्टमेंट की, तो सारे काम छोड़ के प्रोडक्ट इनोवेशन, एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, सब कुछ हो जाएगा, फंड मिल जाए बस एक बार कुछ भी करके, वैसा रहता है। सो नहीं देखो, इसमें स्टार्टअप वाले की भी गलती नहीं है। अभी एक फंड वाले से एक डील पे बात हो रही थी, फार्मा डील पर। तो वो कहता है कि उसने पूछा, आपका फंड का यूज कैसे करोगे आप $1 million"। तो उसने बोला 48% मार्केटिंग, 30% प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टीम बिल्डिंग 10%। तो उसने बोला, आई विल फंड यू इफ यू पुट 92% इन मार्केटिंग। ओ गॉड। तो मतलब उनको भी मार्केट शेयर चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन सारी मार्केट शेयर पे भागती है। तो आज तो एक्चुअली फिर मैं एक दिमाग तो स्टार्टअप के खराब साथ होगा ही मेरा ना सेशन था, स्टार्टअप वाले का। हाँ, मेरा एक स्टार्टअप का सेशन था दिन में, तो मैं उसको भी यही बता रहा था कि it's good to present your startup in front of me, that's a different story, but when you're talking about investor, तो तुमको समझना पड़ेगा कि वो स्केलेबिलिटी पे स्केलेबिलिटी वर्ड सुनने को उतारू है, और वो वेट कर रहा है कि तुम बताओ कि स्केल कैसे होगा, कितना होगा, कैसे कर सकते हो, वो उस पर ज्यादा फोकस है। तो तुमको कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, स्केल कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट वही है 20x 30x कैसे होगा उसमें करके। बिल्कुल ऑलराइट। बिल्कुल। अच्छा, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, तो बहुत सारे सवाल स्टार्टअप के आते हैं, सो आई विल कीप ऑन जंपिंग ऑन टू दीज थिंग्स। तो लाइक यू सेड कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अच्छी डील कैसे मिले, सो एक ये स्टार्टअप का मिथ, प्रोबेबली इफ यू कैन रिमूव इट, कि स्टार्टअप मेरे पास आते हैं, और यहाँ लाइव पे भी अभी भी शायद कोई सवाल आ जाएगा तो रोज आके पूछते हैं कि सर हम इन्वेस्टर कहाँ ढूंढें, राइट? इन्वेस्टर कहाँ से मिलेगा, ये एक सवाल आता है। बट यू सेड इट समथिंग एल्स, जो मैं स्टार्टअप को बोलता भी हूँ, बट इट्स गुड टू हियर इट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, कि दैट इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड डील्स, कि अच्छी डील्स कहाँ पे मिले, राइट? एब्सोल्युटली। सो ये तो शेयर इट वही वाली समथिंग अबाउट कहानी इट। है कि दूल्हा दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि वो मैच कैसे बनाए। हाँ, तो ये एक अच्छा, तो इसमें लाइक लाइक हैव यू कम अक्रॉस एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू शेयर इट प्रोबब्ली, कि ये कितना सही है और कितना एक्चुअली होता है मार्केट में, लाइक यू हैव सीन इट कि इतने सारे स्टार्टअप्स है, व्हेन वी टॉक अबाउट कि एवरीवेयर एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप, इतने सारी कम्युनिटीज है, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स खुले हुए हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड, और पता नहीं कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। एंड देन why do you think that there is still not scarcity, but it's like still the investors are not being able to get the right deals or get the deals even, what is it, what is the होता क्या है disconnect that you think? इसमें एक तो हर्ड मेंटालिटी का बहुत रोल है। देखो ऐसा है, अगर यूएस में कोई सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो उस सेक्टर की कॉपी दुनिया भर में बनेगी, और जो यूएस का में अपने ऑफिसेस खोलेगा कि हर कंट्री में टॉप 3 में आ जाओ उस सेक्टर में। तो होता क्या है कि इस सारे केस में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली इन्वेस्टर को क्या लगता है कि मैं किसी ऐसे स्टार्टअप में इस समय अभी पैसा डालूं अगले 1 महीने के अंदर, जो फ्यूचर में टॉप 3 में नया सेक्टर है उसमें टॉप 3 में आ जाए। और उस चक्कर में कंफ्यूजन होता है, बिकॉज इन्वेस्टर पैसा लेके घूम रहा है। कई सारे कॉपी कैट्स आ जाते हैं जो यूएस की कॉपी करके तो उस चक्कर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो भी स्टार्टअप को इन्वेस्टर ढूंढना है, तो उसको एक सिंसियर एडवाइजर चाहिए होता है, एक कंसल्टेंट चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए होता है, और दे शुड गो टू द राइट प्लेसेस, जैसे कि इवेंट्स जहाँ पे इन्वेस्टर्स डिस्कस करते हैं अबाउट मार्केटिंग, प्रोडक्ट, फाइनेंस, और एंड थ्रू द राइट पीपल। अगर आप इन्वेस्टी कंपनीज के फाउंडर्स के थ्रू जाओगे इन्वेस्टर के पास, वो आपको बहुत सीरियसली लेगा। तो अगर आप
गलत चैनल से जा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर पहली से एक माइंड मेकअप कर लेता है ये हल्की डील है और ये लोग ज्यादा सीरियस नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डबल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करते हैं फंड के साथ, एक पार्टनर लेवल पे और एक एनालिस्ट लेवल पे, क्योंकि एनालिस्ट को तो अपना काम करना ही है, देखो कागज का काम कागज से ही होगा। तो एनालिस्ट को हमें समझाना पड़ता है टेक्निकली बिजनेस के बारे में, और पार्टनर को कन्विंस करना होता है अबाउट द राइट पीपल, राइट फाउंडर्स, राइट बिजनेस, द राइट मोमेंट टू इन्वेस्ट। हमें वो हाइजीन फैक्टर्स के बारे में कन्विंस करना पड़ता है। So you're saying that it is always good to have somebody, some helping hand actually to take it to the right investor, because probably that person knows a little bit more about the industry and the process. Yeah, definitely. Otherwise, you will keep on making mistakes. अभी जैसे इम्पैक्ट, आपकी कोई इम्पैक्ट कंपनी है, एनवायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनी है। अब आप इम्पैक्ट फंड्स देखो, इंडिया में 47 फंड्स के आसपास हैं। अगर आपने उसमें से 15 फंड्स में गलती करने में निकाल दिए तो आपकी तो चॉइसेस कम हो गई ना। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, पिच डेक अच्छा बना हुआ है, इंटेलिजेंटली बना हुआ है, आपका वैल्यूएशन किया हुआ है, बिजनेस प्लान अच्छा बना हुआ है, तो ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। उसके बाद आप कैसे अप्रोच करो और कॉल्स को कैसे हैंडल करो, मतलब तो उस सब में क्या होता है, देयर इज अ ग्रेट बेनिफिट इन हैविंग द राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर बाय योर साइड। और ये फंड वाले के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, फंड वाले की इतनी छोटी टीम होती है और इतनी ज्यादा डील्स आती हैं कि उनको भी हेल्प चाहिए होती है। तो वो तो फंड वाले हमसे बोलते हैं, यार तुषार ये सारी चीजें आप देख लो और हमें आप हाइजीन फैक्टर समझा देना और हमें मोटा मोटी धंधा समझा देना, जो कि 15-20 मिनट आधे घंटे में समझाना होता है। उसके आगे जो काम है वो हम जब टर्म शीट इशू कर रहे होंगे वो नेगोशिएशन के टाइम पे करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ना एक पॉइंट मेरा था कि you said it about the copycat thing. Since you are in the industry and you are actually speaking to a lot of funds and you have helped a lot of startups in raising the funding. So how do you think and what do you talk about copycats? Like for example, कोई startup UK में चला या US में चला, कहीं पे चला और उसको फंड मिल गया या कोई भी ब्रांड बन गया वहां पे जाके, जिसके बारे में इंडिया को किसी को नहीं पता, बट देन इन्वेस्टर्स को तो पता है क्योंकि वो उन कम्युनिटी में उनको पता है कि दिस प्रोबेबली कैन बी द अपकमिंग थिंग इन इंडिया आल्सो, माइट बी लाइक सारी चीजें नहीं चल सकती बट देन कुछ चीज चल सकती है, राइट? सो जैसे टैप एंड पे, लाइक वो इतना फेमस इतने सालों से यूके में है, यूएस में है, सब जगह पे है, इवन दुबई में है, सब कुछ है टैप एंड पे। इंडिया में टैप एंड पे अभी पेनिट्रेट होना शुरू हो रहा है, अभी भी हुआ भी नहीं है टैप एंड पे। सो तो ना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज कॉपीकैट्स? क्योंकि इंडिया में कॉपीकैट्स का सिस्टम वो ऐसा है कि आपने जाके किसी वेबसाइट से उसका पूरा कोड ही खरीद लिया $1000 का और आपने बना दिया। इंडिया में कॉपीकैट का मतलब कहीं ना कहीं वो होता है, देखो और देखो फिर ये हो जाता है कि हाँ। ना यूएस में चल रहा है तो सर यहाँ भी चल जाएगा। नो, व्हाट इज योर टेक इनटू कॉपीकैट्स? देखो मैं 3 बातें बताता हूँ। जापानीज लोग, अमेरिकन लोग, यूके, साउथ ईस्ट एशियन घर के बाहर बहुत खाना खाते हैं, घर में कम बनता है। इंडिया में घर में खाना के एक कल्चरल वो है कि घर में बनना चाहिए, लेडी को बनाना चाहिए एंड ऑल दैट। तो अगर आप फूड टेक सेक्टर में एंटर कर रहे हो तो आप बिजनेस मॉडल कॉपी नहीं कर सकते इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया में। तो वो अब जैसे बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज अमेरिकन टेस्ट लेके आई थी फूड में, वो यहाँ नहीं चले और बाद में उनको लोकल टेस्ट को अडॉप्ट करना पड़ा। तो मैं मतलब डेरोगेटरी तरह से नहीं बोल रहा हूँ कॉपीकैट को, कॉपीकैट में भी उतनी ही मेहनत है जितनी ओरिजिनल में है। लेकिन मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। सिकोआ में दिस लेडी वाज देयर, शी लर्नड अबाउट B2B ई-कॉमर्स बिजनेस, और उसने क्या करा, रिसर्च करी, उसने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया में सेम टाइप का कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। शी वेंट टू थाईलैंड, शी ओपन जिलिंगो, और जिलिंगो 2 साल या 2.5 साल के अंदर $1 बिलियन की कंपनी है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। तो सेकेंडली
there is a doctor here. His son used to approach me for funding. He was working as very senior in Paytm. तो उसको धंधा अच्छी तरह से आता था. उसने क्या किया, उसने रिसर्च करी, उसने देखा कि मेक्सिको इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे पेटीएम टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं है. उसने वहां पे यहाँ से 3 फ्रेंड्स के साथ गया अकेले, चारों ने मिलके वहां पे रूम लिया और उन्होंने द्रोस त्रेस करके एक पेटीएम टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च किया. उसको 5 मिलियन की फंडिंग मिली है रिसेंटली. तो ही इज ऑन द वे टू बिकम द टॉप 3 इन मेक्सिको. तो यू कैन इमेजिन, अगर आप टॉप 3 टाइप के चीज में आते हो तो आपकी जो वैल्यूएशंस होती हैं वो इकोनॉमी के साइज से नीचे टॉप डाउन लेवल पे डिसाइड होना शुरू हो जाती है. फिर वो बॉटम अप पे नहीं होती धंधा कितना है. तो these are all entrepreneurial stories, तो I have great respect for such entrepreneurs. लेकिन कॉपी कैट में क्या होता है ना, जैसे आपने उबर को देखा, यूएस में उबर आई है, तो इससे पहले उबर इंडिया आए, यहाँ पे मेरू कैब्स और ये कैब और वो कैब, लेकिन उनको बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली दे डिडंट हैव कंट्रोल ओवर द बिजनेस मॉडल. तो दे मेड मिस्टेक्स, कितनी बंद हुई. तो ये है कि that for a startup founder, he has to really keep on pivoting his business model, keep on taking the right inspiration, mainly get the right people in your team. That is very important. Very very tough things actually you're telling to the Indian startups. वो थोड़ा फैंटेसी लैंड पे ज्यादा होता है. मैं तो रोज कितने सारे स्टार्टअप को बोलता हूँ इस बारे. अच्छा, मुझे एक चीज और एक क्वेश्चन और जो पिछले 4-5 दिन से तो मेरे पास आ रहा है, जब से वो यूएई ने नए अपने नॉर्म्स चेंज करे हैं तब से, कि सो हाउ लाइक बेनिफिट दैट यू फील कि अगर कोई इंडियन स्टार्टअप है, जैसे जो फ्लिपकार्ट ने करा, ऐसे बहुत सारी सेवन जोहो ने करा और पता नहीं किस ने करा, कि you have an operational activity in India, you have a product made for India, operationally in execution everything in India, and you have a company in US or probably in Belarus or Belgium or wherever it is, right? So I'm not going into the taxation part. Probably you can put a little pinch also onto this, but then is it beneficial or is it good for a startup to do this kind of activity also? So what happens is, जैसे सिंगापुर is the financial gateway to Asia और फ्लिपकार्ट वालों ने वहां पे होल्डिंग कंपनी डाली हुई है. टैक्सेशन तो यही एस्पेक्ट है कि इंडिया सिंगापुर की डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और इक्विटी जब आप बेचते हो तो उसमें जो कैपिटल गेन्स की वैल्यू आती है उस पे परसेंटेज टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स सिंगापुर में कम है, इंडिया में ज्यादा है. राइट. तो वो सिंपल बात है. लेकिन मेनली ना इन्वेस्टर ये कहता है, वॉलमार्ट ये कहता है मैं 21 बिलियन डॉलर्स डाल रहा हूँ, मेरे को कुछ लीगल पचड़ा नहीं चाहिए. और एक इंडिया की परसेप्शन ये है, बिकॉज यहाँ के कोर्ट्स जो हैं दे आर वेरी स्लो, उसमें ओवर नंबर ऑफ केसेस हैं, कोई कोर्ट्स में जाना नहीं चाहता बिकॉज इट इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन लॉयर्स. सो एक परसेप्शन ये है कि अगर आपको राइट कंप्लायंसेस वाली कंपनी चाहिए तो एक होल्डिंग कंपनी बाहर होनी चाहिए. तो इट इज अ वेरी सैड स्टोरी. संजीव बिखचंदानी हैज आल्सो कमेंटेड कि काफी सारी कंपनीज अपनी होल्डिंग कंपनी बाहर बना रही हैं, बट इट इज अ सैड स्टोरी बिकॉज इट इज लाइक टेकिंग आउट द वेल्थ फ्रॉम इंडिया. राइट, एब्सोल्युटली. तो मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक रोबोटिक कंपनी है, कहता है मैं बाहर बनाऊंगा ही नहीं बिकॉज आई लव इंडिया. तो इट्स अबाउट, अब होल्डिंग कंपनी आपको खोलनी है, बड़ा सिंपल है, सिंगापुर में आप ओपन कर सकते हो. वहां पे लिक्विडिटी जो है, जो मनी अवेलेबल है वो काफी ज्यादा है बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल हब, और आप होल्डिंग कंपनी में भी पैसा ले सकते हो या फिर यहाँ की सब्सिडरी में भी ले सकते हो. तो आपके पास ऑप्शन हो जाती है, इंडिया से लेना है तो सब्सिडरी में ले लो, सिंगापुर से लेना है तो होल्डिंग कंपनी में ले लो. ओके. लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि फॉर ऑल पर्पसेस ह्यूमन रिसोर्स इंडिया की ही लेते हैं, बिकॉज चीप, हाई क्वालिटी, क्वालिटी कॉन्शियस, प्राइस कॉन्शियस, टेक्स टाइम टू टेक अ डिसीजन ऑन बाइंग, ये सारी इंडियंस की क्वालिटीज हैं. सो वो एम्प्लॉइज तो इंडिया के ही रखते हैं इंडिया में, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोशिश करते हैं बाहर हो जाए, होल्डिंग कंपनी कोशिश करते हैं बाहर हो जाए, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करते हैं
वो सिंस इंडिया की एक मार्केट बहुत टफ कंज्यूमर मार्केट है, तो वो पीएमएफ जो अचीव होता है उसके बाद किसी भी कंट्री में प्लग एंड प्ले करके आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हो बाय एंड लार्ज। मतलब तो वो इस टाइप का माइंडसेट है कि इंडिया का पीएमएफ की वैल्यू बहुत है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि वो जो दुबई ने अभी स्टार्ट किया है, यूएई ने। दुबई का मैं थोड़ा सा, अगर आप 2 मिनट का, मैं दुबई में क्या है कि ऑयल मनी उन्होंने, दुबई का खुद का तो दुबई में कोई ऑयल नहीं निकलता, लेकिन उसके साथ यूएई की जो बाकी शेखडम्स हैं वहां पे निकलता है। तो इनकी विजन, शेख मखदूम की विजन वाज ऑलवेज वेरी हाई। तो उसने कहा कि यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत है, तो ट्रेडिंग और टूरिज्म के को लेके एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। एंड अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बिजनेस काफी डाउन है वहां पे। सिंगल न्यूज़पेपर कंट्री है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड न्यूज़पेपर है, तो वहां पे इतना छपता नहीं है, बट बिजनेस डाउन है काफी। और सो यू नो दैट्स व्हाई दे आर competing with other countries in the region also. सऊदी अरेबिया ओपन हो रहा है, सो दे अभी तक तो वो ये था कि आपको शेख के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी अगर आपको दुबई में करना है, नहीं तो आप फ्री ट्रेड जोन में जाके काम करो, विच इज थोड़ा सा लोकेशन दुबई से थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो अब इन्होंने ये कर दिया, 100% अलाउ कर दिया, विच इज अ बिग थिंग। मतलब बिकॉज दिस शेख थिंग, आई हैव नथिंग टू से अगेंस्ट शेख्स एंड ऑल, बट उसमें कई बार प्रॉब्लमेटिक केसेस भी काफी होते थे। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब से ये हुआ है और न्यूज डाला है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए, सर वी वांटेड टू ओपन अ कंपनी इन दुबई एंड सो लाइक कि ठीक है ओपन तो कर लेंगे, बट द क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू ओपन अ कंपनी इन दुबई? इज इट कोई प्रोसेस है, तुमको कोई फंड मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तुमको दुबई में ऑपरेशंस करना है, नहीं करना है, क्या करना है? बट ओके, ग्रेट इनसाइट। आई मीन एटलीस्ट उनको पता चला कि दुबई में यूएस वाला एक यूएस का भी क्लाइंट मेरे पास था, उसको भी मैंने अभी रिसेंटली कनेक्ट किया किसी के साथ में टू ओपन अप अ कंपनी इन डेलावेयर। तो वहीं पे खोलते हैं वो सब के सब डेलावेयर में कंपनी, और फिर बाद में चाहे कैलिफोर्निया लिख देता है, लेकिन लिखते खोलते तो कंपनी डेलावेयर में ही है। ओके, तो एक और चीज बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग सम क्वेश्चंस कि what do you suggest at the initial stage? How can somebody find the right people or probably build a team? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इनिशियल स्टेज, और अभी लॉकडाउन वाले सीजन में तो इट्स लाइक किसी से मिल ही नहीं सकते, तो कहाँ से ढूंढे? मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। योर देखो ऐसा है, गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, टेक कंपनी है। जो गूगल, वो कहते हैं ना, गूगल का एग्जाम में क्या पूछते हैं, वो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और वैसे पूछेंगे। देखो एनालिटिकल स्किल और लॉजिकल स्किल और ईक्यू, वो तो अगर आप एमबीए करके आ रहे हो तो आपको स्टैनफोर्ड वगैरह ने सब चेक कर ही लिए होंगे, आईएम वालों ने चेक कर लिए, आपने जहां से भी एमबीए किया है वहां से उन्होंने चेक कर लिया होगा। सबसे बड़ी चीज होती है इंटेग्रिटी, कि आप अपने लिए कितना ट्रू हो। अगर आप अपने लिए ट्रू होगे तो आप काम में भी ट्रू होगे, और दूसरे की जो टीम वाले हैं उनके लिए भी ट्रू होगे। तो गूगल की जो फर्स्ट चीज वो चेक करते हैं वो इंटेग्रिटी चेक करते हैं। तो आप अगर किसी को टीम में ले रहे हो, पहली चीज होती है इंटेग्रिटी, वो बंदा कितना जेन्युइन बिहेवियर है उसका। और दूसरी चीज होती है कि आप कोशिश करो कि 3 या 4 साल का जिस चीज के लिए आप ले रहे हो उसका एक्सपीरियंस हो बंदे को, क्योंकि अगर उसको एक्सपीरियंस होगा तो आपका टाइम बहुत कट होगा, जो टाइम वेस्टेज होगा, रिसोर्सेज वेस्टेज होगा। तीसरी चीज ये है कि डिग्री चाहे हो या ना हो, बट अगर उसका लर्निंग का एटीट्यूड है, विच इज नॉट लाइक टेकिंग डिग्रीज बट स्किल्स, एक्वायरिंग स्किल्स। आप उसको बोलो कि बॉस ये काम करना है, तो अगर वो बोलेगा सर इसके लिए तो मैं ट्रेंड ही नहीं हूँ, तो भाई कोर्सेरा, यूडेमी, अनअकैडमी, ये सारे सब कंटेंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना आजकल। गूगल में कंटेंट इज फ्री, हर चीज अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है। भाई तो कोई कोर्स कर ले, तो सर्टिफिकेट का करके और सीख ले, 1 महीना लगता है, 1.5 महीना लगता है, 2 महीना लगता है। तो एटीट्यूड, और एक बहुत चीज जो आजकल लोग कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, कि अगर वो आपके टीम में आ रहा है तो वो ये सोच के आए कि यार ये सेक्टर इंडिया में $10 बिलियन का है,
तो उसका माइंडसेट ये है कि ये कंपनी जितनी भी चाहे बड़ी हो सकती है, सेक्टर बहुत बड़ा है। तो उसकी सोच ये ना हो कि मैं किस रूम में बैठा हूं, उसको सिर्फ वो रूम ना दिखे, उसको पूरा सेक्टर दिखे। उसको ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, Because which here is like initial stage पे, उसको हाँ the companies are small, the rooms are small, the everything is small. So, but then you rightly said it that if you have to see that vision and see the industry, that how big is the industry, and we are a part of that industry, so we can penetrate more into it. नहीं, मैंने ऐसे एंटरप्रेन्योर देखे हैं मधुर, जो आपको क्वेश्चन बैक करेंगे अगर आपने नेगेटिव बोला तो। कहेंगे क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? मतलब कोई रीजन, आप कोई कुछ भी रीजन बनाओगे, ज्यादातर लोगों ने जजमेंट्स बनाई होती है लाइफ के बारे में, और वो जजमेंट्स ही होती हैं जो हमें रोकती हैं कुछ ना कुछ करने से, क्योंकि हम उसको जज करके बैठे होते हैं। नहीं, वहां पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, यूएस में ऐसा है इस सेक्टर में, तो इंडिया में भी ऐसा ही होगा। मतलब तो जजमेंट्स को किल करके अगर हम क्लीन माइंड से किसी चीज को देखेंगे तो हमें ग्रोथ माइंडसेट की अचीवमेंट होगी। And that's why people say this, you got to be a good listener. You got to listen to the people, the team around you. And then when you listen, चाहे वो employee सुन रहा है या वो founder सुन रहा है employee के बाद, it's like when you listen, then only you'll be able to understand how big this industry could be, or how sort of a growth I can expect out of this thing. Okay, great things. So अब मैं let me just try. I think कुछ questions already आए हुए हैं. What is your views on buy now pay later concept workable in India? India is a very bad market for any loan kind of product, because अगर आप historically देखो, इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स हमेशा हाई रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, मार्केट से सारा पैसा एज अ लोन ले लेती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बचता नहीं है, उनको हाई इंटरेस्ट पे लेना पड़ता है। लेकिन मार्केट प्राइस कंपेटिटिव है, तो वो हाई इंटरेस्ट का लोन बहुत ही भारी पड़ता है कंपनीज को, तो वो थोड़ी सी भी मार्केट हिलती है वो वापस नहीं कर पाते। उसमें थोड़ा सा ये भी है कि क्रूक्स भी हैं जिन्होंने 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के लिए और वापस नहीं किए, तो वो एक अलग स्टोरी है। मैं आपको छोटे लेवल की it's a tough market. It's a tough market and it's a risky market. लोन के लिए इंडिया इज अ वेरी टफ मार्केट। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं उसके बारे में आप बैंक्स का डेटा स्टडी करोगे, थोड़ी सी इकोनॉमी में छींक लगती है, अनसिक्योर्ड का इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है बैंक को। राइट। तो जहां तक ये बाय नाउ पे लेटर, ये वैल्यूएशन के लिए अच्छा है। जैसे मैं एक कंपनी को जानता हूँ जो नास्पर्स ओन करती है, तो वो ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन लोन देते हैं। तो जब तक उनकी बुक बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है, उन्होंने लोन्स, नंबर ऑफ लोन्स ग्रांटेड की फिगर बहुत हाई जा रही है, तो उनको वो वैल्यूएशन सपोर्ट करती है कंपनी को। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट अ वेरी गुड इन इंडिया इट्स। लेकिन ये है कि एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। इंडिया डॉलर टर्म्स में 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, विच इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड डॉलर टर्म्स में। लेकिन पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब कि यहाँ पे जो इकोनॉमी रुपी में 11 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट। चाइना इज नंबर 1, यूएस इज नंबर 2 एंड इंडिया इज 3rd, विच मीन्स कि जीडीपी एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। और जीडीपी में 3 चीजें होती हैं, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, कंजम्पशन बहुत हाई है इस कंट्री की कंजम्पशन। और ये कंज्यूमर B2B और कंज्यूमर B2C जो कंपनीज फंड हो रही है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको कंजम्पशन टैप करने के लिए लोन प्रोवाइड करना पड़े, तो कीप इट एज अ सेपरेट फिनटेक कंपनी। उसकी बैलेंस शीट आपकी ओरिजिनल कंपनी से सेपरेट होनी चाहिए, बस वो धंधा अलग है, ये धंधा अलग है। मैं आपको एप्पल की बात बताऊं, टिम कुक से बोला था कि आप लोन क्यों नहीं देते हो आईफोन खरीदने के लिए। वो कहता है बिकॉज ये मेरा धंधा है ही नहीं, मैं बैंक नहीं हूं, मेरा धंधा है कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने का, दैट आई अंडरस्टैंड बेस्ट। तो आपको लगता है कि 2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी एप्पल लोन नहीं दे सकती आईफोन खरीदने के लिए? नहीं देती। तो ये है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा, मधुर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। तुषार कंसल मेरा नाम है, मैं लिंक्डइन पे इजीली अवेलेबल हूँ। कंसल्टेंसी वेंचर्स में मेरा सरनेम यूज होता है कंसल, KNSAL।
और आई एम इजीली अवेलेबल, आप लोगों को कोई भी किसी भी टाइप की And guys, पिच डेक वैल्यूएशन. Agar, so we have actually onboarded him as one of our experts. So anybody who wants to speak to him, and anybody can book his session. So there is a link in the bio. Do check up over the expert talks. So he's there available anytime you want to book his session. Please do that. And whatever queries, questions, and information or support that you're looking for, everybody is open onto this site. So anybody can do that. I think okay, so somebody was asking about this thing. Okay, so एक I think point था, yesterday I came across that many companies who already have raised fundings still go for Y Combinator incubation. I want to know your views. ये Y Combinator तो is famous because it gives you money in the shortest time. अगर आपको 10 मिनट की पिच पसंद आ गई तो वहीं के वहीं चेक पकड़ा देगा और एक पेज का एग्रीमेंट साइन करके भी चेक दे देगा, और वो अमाउंट भी जो देता है वो आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के थ्रू बाद में इक्विटी में कन्वर्ट होगा जब आपका नेक्स्ट राउंड की वैल्यूएशन लगेगी, उस पर थोड़ा डिस्काउंट लगा के, या फिर वो आप एज अ लोन मान के उसको वापस भी कर सकते हो वाई कॉम्बिनेटर को. तो इट इज द इजी सच अ इजी वे टू जनरेट मनी, इक्विटी मनी, इसलिए लोग करते हैं. और वाई कॉम्बिनेटर आपका नाम के आगे आप देख लो, जो भी आपको वाई कॉम्बिनेटर वाली कंपनीज होंगी, लिंक्डइन पे जो ऊपर हेडिंग होगी उसमें वाई कॉम्बिनेटर लिखा होगा उसमें. तो इट इज अ ब्रांड ऑल्सो ना कि आप वाई कॉम्बिनेटर बैक्ड हो. मेरे पास 3 IITians की कंपनी आई थी जो रोबोज बनाए थे उन्होंने फॉर मेकिंग फर्नीचर. तो नोएडा में वो लोग का ऑफिस था, वाई कॉम्बिनेटर से फंडेड थे, एंड उनकी जो पूरी मार्केट नेटवर्किंग चल रही थी वो IITians एंड वाई कॉम्बिनेटर की ब्रांड पे चल रही थी कि वाई कॉम्बिनेटर ने फंड किया हुआ है, और इसमें जो फंड वाई कॉम्बिनेटर ने किया है उसमें किसी हॉलीवुड हीरो का भी थोड़ा सा पैसा लगा हुआ था. दीज आर ऑल नेचुरली ब्रांड्स की वो तो होती है. देयर इज अ market presence of the brands. So I'll not take much time, but I just wanted to see if anybody wants to come live and wants to ask you any question. One last question, guys. Anybody, Avdesh actually had something, or anybody, Tushar, seen your question also. So anybody who wants to come live and ask him probably one last question. I've taken much of time, but I will force him to at least reply one question. So anybody wants to join in, let me know. Always a pleasure for you, Madhur. Thanks a lot. I mean, it's like startup के question बहुत सारे होते हैं, but let me see if I have anybody. Anybody who wants to join in, send me the request. I can take you live. Tushar, Avdesh, if you are there, Piyush, anybody wants to join. Question I have. Okay, I think. Okay, I've got UD Nayak. I've got one UD Nayak. It's coming. Oh, I've got several actually. Quick questions. So we'll take 2 questions actually. I'll take. Sure. Hello. Hi, Yudi. Hi. So why have you? तुम छत पे खड़े हो या तुमने कैमरा बंद करा हुआ है? No, camera. Actually, I was on the rooftop. So तो क्वेश्चन का आंसर अगर प्रॉपर नहीं मिले और तुम्हारा स्टार्टअप ज्यादा अच्छा नहीं हो तो प्लीज कूदना नहीं, ठीक है? No. Please stay there, right? Yeah. ठीक है. So Okay. my question is actually in this time, it's very hard to get a team in the office, and being a IT startup, we are really facing a challenge from the resource side, who is not available in the office, and the coordination is really very impossible. Why? Because when we are developing on a product, and the product owner is giving us the deadlines, and this require a coordination between the team. And when they are working remotely, it's really very hard to monitor them. It's to generate the expected results from the product owner side. So we are lacking in this part as a startup, and we really hit hard due to Corona and COVID in this situation.
So my question is regarding that. I mean, I'm sorry, like if this is not something subject to the, No, no, no. but I No, think no, please don't feel sorry. I will take your question. okay. Thank you very much. So the thing is, मैंने बड़ी आईटी कंपनीज भी देखी हैं, मैंने छोटी आईटी कंपनीज भी देखी हैं. So basically, you are saying finding the right talent is a problem, but let me tell you, today's time, so much talent is sitting at home. So you have Yes, to sir. catch the right people. But you know, I think what you are missing is a good HR. अगर आप लोगों से काम नहीं ले पा रहे और आपको वो वाले इश्यूज हैं, तो यू नो यू नीड सम बाहुबलीज इन योर एचआर, those Okay. who can keep a morning half an hour call and evening half an hour call with all of the team, Okay. or output, make your team output driven, that they should clearly know what is the output required from them. And secondly, आपको थोड़ी एम्पैथी ज्यादा दिखानी पड़ेगी टीम के साथ. आप अगर किसी को निकाल रहे हो, उसको कहीं और प्लेस करा दो. Okay. आप थोड़ा सा कोविड के टाइम पे अगर किसी को कोविड है, उसको आप सिलेंडर में हेल्प कर दो या किसी हॉस्पिटल में हेल्प करो. आपको थोड़ी एम्पैथी ज्यादा दिखाओगे, आपकी टीम आपके पीछे रैली करेगी. Okay. थोड़ा सा आपको अपने एक तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एचआर के एक या दो लोग रखो जो टीम से काम निकालने में एक्सपर्ट हो. और दूसरा, Okay. आपको टैलेंट तो कम एक्सपीरियंस वाला तो भर के मिलेगा आपको, तो लेकिन हो Okay. सकता है उनको आपको थोड़ी सी अपस्किलिंग करनी पड़े बाय दीज ऑनलाइन कोर्सेज. Okay. Okay. सस्ते का हिसाब बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें ज्यादा पैसे ना लगे. Right, sir, right. अभी I mean, एक that's a कंपनी really है, good वो insight. आईआईटीएन है और आईएमबी है. उसने आईटी कंपनी खोली है, यूएस के लिए काम करता है उसकी कंपनी. उसने मैं 100% मेरे खुद की देखी हुई चीज है, उसने एक स्ट्रॉन्ग एचआर रखा और एक या दो जो स्ट्रॉन्ग एचआर वालों थे, उन्होंने सारा आउटपुट निकाल के दिया उसको. Okay. That's really great उसने insight कंपनी from भी you. बेच दी, उसकी कंपनी भी बिक गई, इतना अच्छा आउटपुट निकाला उसने. Okay. एंड यूडी, यू नो, गो एंड चेक Yeah. आउट इंटर्नशाला. ठीक है ना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आज का, नॉट बहुत पुराना. मैं अभी 4:30-5 बजे का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना. सो आई वाज एक्चुअली, तो हम लोग ना बहुत ज्यादा इंटर्न्स रखते हैं कंपनी में. आई रियली लव इंटर्न्स, इंटरेक्टिंग विद देम. बहुत नया सुनने को करने को बहुत कुछ मिलता है, नए ब्रेन्स मिलते हैं. गो टू इंटर्नशाला और वहां पे जाके 2-3 इंटर्न्स देखो जो एचआर वाले होते हैं नहीं. ठीक है ना, उनसे बात करके देखो. फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास शायद बहुत ज्यादा फंड नहीं होगा. अगर है तो जरूर एचआर का रखो, यू नो, कोई ऑन कॉल एचआर रख लो. और तुम्हें वहां पे ना एक ऑप्शन है जो मैंने अभी देखा कि इंटर्नशिप बहुत सारे ऐसे लोग करने के लिए रेडी हैं कम प्राइस के ऊपर, पार्ट टाइम करने के ऊपर, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं. दिस व्हाट आई गॉट इट टुडे. इंटरेस्टिंगली मेरे को आज मेरी किससे बात हुई जिसके बाद 8 साल का एचआर का एक्सपीरियंस है, एंड शी इज रेडी टू वर्क ऑन कंटेंट विद मी. Any pricing. Okay. So price is not the point, but the point is that, you know, she's got the experience in HR. मेरा तो दोनों काम हो गए, मेरे को content भी मिल गया, मुझे HR भी मिल गया, and at a lesser price, right? So do check out that also, Right. you know. So it's about, you know, when you are in the era of digital, you have to open your brain, open your mind, and search onto the Google. हमने जो story शुरू करी थी आज यहाँ से Google से start करी थी, and it's actually, you know, you get a lot of things onto it. Just sit there, you know, you find several things onto it. But yes, HR, great reply onto this thing. तुम्हारी प्रॉब्लम मैक्सिमम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा. Yeah. I want to say Right. that this is really, I wasn't thinking upon, you know, having a good HR, but now onwards I will definitely think about having a good HR so that, you know, we can generate a good production from our side. Great. That's a really great insight. और Thank ये you, sir. करके Thank you. do come back to me. You do come back to me and share your experience. This will, your experience जो अगले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद का होगा, this will help rest of the people also. So do come back. 100%. Definitely. I'll come back to Right. you. Sure, Okay. perfect. Thank All the best. Bye. Take care. Thanks. So Tushar, if you are okay, I can take one more call. Yeah, We have sure. to Why go, not? Right? No. Okay, so Sure. Please take. I think because यहाँ पे ना कोई कॉल्स खत्म नहीं होती हैं, और वो मुझे ये लोग ना 10:30 बजे तक रोक के रखते हैं कि सर एक कॉल और ले लो. 10:30 बजे भी मुझे जब तक नॉक नहीं हो जाती ना दोनों डोर्स के साइड में, तब तक ऐसा चलता रहता है मेरे साथ.
Hi Ankush, how are you? Hi Madhur. Hi Tushar. How are you? Hi, how are you doing? Okay. So sir, my question. Okay, can you hear me? Because I Yeah, we don't can have hear you. headphones. Absolutely, absolutely. So okay. So my question is, what is the scope of finding? What is the scope of funding for the hardware company? हार्डवेयर कंपनी के साथ इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमारा No, कंपैरिजन Tushar, चाइना से hold हो on. जाता है. Just what this for me. No, Ankush, what do you mean by hardware? And what is the hardware that you're talking about? Okay, I'm talking about the my battery plant. I mean, the battery startup. So Okay, yeah, let me let. you got to share it first. I know because Tushar doesn't know what you do. Okay, okay. So, okay, I'm Ankush and I'm running this company, Volta Lithium Hub Private Limited, nearly 2 years now. Okay, and we are manufacturing lithium-ion batteries and we are supplying to the OEMs, mostly two-wheeler manufacturer, and we have some other clients, those who are dealing into the solar field also. Okay, we do have a good turnover. We are profitable. We do have a good turnover. We have already made some future plan. Okay, but we are not sure. Like I have already discussed this thing with the Madhur, whether we should go for the debt funding or the equity funding. I mean, bank is ready to give us debt. Nearly 50 lakh bank is ready to give, but that 50 lakh may not be a big amount for this industry. Okay. And secondly, I already have a good experience in running the business. This is my second business. So, I have, nearly 5, 6 year experience all in all. And So Tushar, what I I'm wanted to add something here with Ankush. So there are a lot of people who are actually doing great work, right? Like and running good companies, right? But probably in the technical term, they might not qualify as a startup, right? So what do you take? Along with this question, I'm just adding this thing into it. So what is your take? Your expertise is also there, not just the startup, like non-startup also. You've worked a lot in the industry with a lot of players in Deloitte also. So, what is your take that, what do these companies do? I mean, can they go and speak to these VCs also? Are they interested or any other, more to raise the funding? सी इसमें दो कंपोनेंट्स हैं. एक तो है कि हार्डवेयर की जब भी हम बात करें तो कंपैरिजन ये हो जाता है कि अगर चाइना से इंपोर्ट करोगे तो लैंडेड कॉस्ट क्या पड़ेगी. तो वो Okay. चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम. मतलब वहां पे 3-4% का इंटरेस्ट रेट है. लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कोई इशू नहीं है. लाइसेंसिंग का कोई इशू नहीं है. प्लस वो सब्सिडी अलग 6% दे देते हैं आपको. और जीएसटी और इनकम टैक्स में से वो कहते हैं इनकम टैक्स दो ना दो, जीएसटी जरूर दे देना. तो एक तरह से मतलब इतना इजी कर रखा है बिजनेस को कि यहाँ का. और इट्स अ ग्लोबल मार्केट. आपका कंपटीशन चाइना से भी है, इंडिया से भी है, साउथ ईस्ट एशिया से भी है, सब जगह से है. तो कस्टम ड्यूटी कितनी लगा रखी है गवर्नमेंट ने, उस पर बहुत चीजें डिपेंड कर जाती हैं. और हार्डवेयर में क्या है कि अगर आप बड़ी फंडिंग देख रहे हो तो प्राइवेट इक्विटी वाले फंड कर देते हैं. तो यहाँ पे हार्डवेयर के अंदर ज्यादा पैसे रेस करो तो ज्यादा आसान है मिलना. लेकिन अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो जनरली फंड्स वाले ये सोचते हैं यार पचड़े बहुत हैं, 40 लेबर लॉज हैं और अप्रूवल्स हैं. और जनरली ना थोड़ा रिस्क जो उनका प्रोफाइल है वो हार्डवेयर में थोड़ा सा उसको ज्यादा रिस्की मानते हैं वो लोग. ओके. अच्छा, जो चाइनीज एंगल है ना, चाइनीज एंगल वो मेरे साथ नहीं है. उसका रीजन क्या है? दो लिथियम आयन ऑल द वे चाइना इंडस्ट्री है, पूरी चाइना पे डिपेंडेंट है इन टर्म ऑफ रॉ मटेरियल. बट वो कभी भी कंप्लीट मटेरियल इंडिया में नहीं आएगा. उसका सबसे बड़ा रीजन है वारंटी पॉलिसीज. मतलब ये जो पूरा प्रोडक्ट है, इट इज लाइक अगर किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होना है, दे आर सपोज टू हैव अ गुड वारंटी सर्विस फ्रॉम द सप्लायर, which Chinese cannot cater, and those who have tried in the past, they have failed miserably. ओके. तो क्वालिटी हाँ, इश्यूज आए होंगे उसमें चाइना वाली साइड से. quality issue is one thing, and after sale services is another big thing. So, Right. so no Chinese company can ever enter. I mean, we have seen in the past there are the multiple brands who started to use the Chinese product. They have failed miserably, and ultimately, it is a notion that if 50% of the material for the electric vehicle is coming from the
coming from the China. The rest will definitely come from India. The battery, especially, anyone will prefer to buy the battery from India. The biggest reason is the after sales service. Biggest So reason is after sales service. after sales service. Okay. Okay, so that way we are very clear that we'll never face a competition, at least direct competition from China. There may be some collaboration, but at least direct competition won't be there. Okay, that is one thing. Another thing, yeah, exactly. I was asking the same thing which you just said, whether we does qualify as a startup, because we are ultimately we run a plant, we are manufacturing. Let me tell you, I'm totally a technical person, and I can do both R&D in making the product better in many senses. We can add a lot of features. Oh no, your voice went completely, Tushar. Ankush. Hello. हाँ, तो स्टार्टअप में तो आप जहां तक स्टार्टअप सर्टिफिकेशन की बात है तो वो तो स्टार्टअप इंडिया से आपको मिल ही सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको वो टैक्सेशन बेनिफिट और वो चीजें चाहिए होंगी तो उसमें वो लोग ये कहते हैं कि यू शुड हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू एंड यू शुड हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू टेक्नोलॉजी। So Tushar, his point is, qualifying startup as in qualifying the startup to go to VCs. हाँ, ओके। VCs के लिए एनीथिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, एनीथिंग लाइक दैट इज मोस्ट वेलकम। एंड इम्पैक्ट फंड्स जो मैंने बताए थे अराउंड 47 फंड्स हैं, लोक कैपिटल, एलिवार इक्विटी, आविष्कार, शेल फाउंडेशन, SBI नीव, DFID which is UK गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, DEG ऑफ जर्मनी जिनका ऑफिस है दिल्ली में, और बहुत सारे इम्पैक्ट फंड्स हैं। कोई छोटा करता है इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा करता है, बट दे आर ऑल लुकिंग एट दिस स्पेस वेरी कीनली। तो मैंने एक सोलर का and then the one last thing probably, what do you say, like, so this is like pure manufacturing. You want them to come into the other side also, to the consumer side, or the B2B, just the manufacturing? नहीं, B2B में आप मतलब B2C में कैसे आएगा B2B वाला? वो तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो B2B को सर्व करने के बराबर होगी। He can probably come on the product side, create a product, create a branding around it, and then start supplying to other countries also and increase his production volume. So yeah, I mean, so I was actually, so product as in the battery of his own name, own branded battery. अपना brand. Okay, yeah, so that is what I'm saying. So B2C side में आके, creating your own brand कि मेरा factory, मेरी company, मेरा product, and I'm selling it all across global. All right. Right. So ठीक है, Amaron battery जैसा मैंने अपना बना दिया, lithium-ion batteries का, and then I'm working on it. All right. Great. So yeah, okay. So ये questions actually यहाँ पे ऐसे आते रहते हैं. So I think so Jaideep, you can go to the section expert talks. There is a link in the bio. वहाँ पे जाना, expert talk का section है. वहाँ पे there is an option to book Tushar session, or you can book any time. Like वहाँ पे Tushar Kansal, KANSAL. Tushar Kansal है. Not Bansal, not Jindal. So anybody wants to book a session can do that. Anybody who wants to follow him, or DM him, anything you wanted to ask him, you can surely do that. मुझे DM कर देना अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, so I can connect you with him anytime you want any sort of support. Fund चाहिए या fund मिल रहा है और term sheet पे काम कराना है या कुछ भी, anything that you wanted, do let me know. I can more than happy to help you out into this thing. I'm more than happy to connect him for this thing. So thank you very much, Tushar. I took much of the time actually. My pleasure. So ये इतने सारे सेशंस यहाँ पे होते रहते हैं, और अभी ये मेरे मैं तो आपके स्टैमिना और कैपेसिटी को so like मैं बोलता हूँ ना कि मैं एक तो प्लैटिनम च्यवनप्राश खाता हूँ और मैं मुलेठी खाता हूँ क्योंकि उसके बिना हो नहीं सकता नहीं हो सकता, गला ही बोल जाएगा। सही बात है। Right. All right, Tushar. So thank you very much. So thank you. I'll see you again, and हमारी और conversation चल रही है, so we'll continue doing that. Or if I get any session booking, so I'll for sure I'll get back to you on this thing. Thank you. Right. Thank you so much, Madhur. It is you guys are doing really great work. Startup news,
and you and the senior gentlemen. My all the best to you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye. Bye. I have forwarded you the deck. You received, Madhur sir. I don't know which email ID have you sent it. You can just DM me on Instagram. I'll see to it. किस नाम से भेजा था या नाम बता दो. Any updates are regarding my meeting? Oh shit, you didn't get any. Hold on. Why did you got any? All right, hold on. FUND. अभी बताता हूँ मैं. Just give me some time. तब तक हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. संपत को लेके लाइव. Save the live. Oh yes, I got to save the live. That means I have to disconnect this in another 5 minutes probably. 41. Yeah, I have to disconnect in another 5 minutes. Right? Hello. हेलो हाय सर. Hi. जल्दी से बताओ क्या सवाल है क्योंकि मुझे 5 मिनट में सेशन को क्लोज करके रीस्टार्ट करना है. Yes sir, I was about to ask that traditional business can acquire a startup, emerging startup. I mean, I previously have said you that I wanted to make an online business of the listing markets of building products. No, I'm Sampath, sir. you're saying can a traditional business acquire new startup? Yes, they can. Yes. Okay. Like anybody can acquire the startup, and there are, and this is happening, right? So Tata is actually acquiring a lot of startups. Jio has done, Jio platforms, right? So Yes, Jio yes. was actually a telecom company. Now Jio is Jio Yeah. platforms, right? What they're doing is they're actually acquiring a lot of new startups and building a complete bunch of the products with them. So anybody can do Yes. that, yes. And this makes sense, right? This makes sense for somebody who's got the fund. Why should I create a product from the scratch? Yes. Right? Rather than creating a product from the scratch, I'll acquire a company and give them a lot of funds and my expertise and my money and my knowledge Yes. and my management skills to run it and Yes. to make it grow. This 100% Yes, sir. makes sense. Okay. That's why I was thinking of how if I wanted to build a company, I have to make a full process. I mean, it takes a lot of time. Rather than I have everything available in the market, which is already doing it, I'll acquire it. I'll use my all network and This absolutely do makes it. sense. Yes, sir. Absolutely. मुझे बताओ, do let me know, message me Yeah. probably, and let me know that, if there is anything that you're looking for, probably I can also find it from the market and I can give it to you. Yes, sir. There are a lot of startups related to this, but they're not coming up with, because they don't have any network or they don't know the market because it is very closed market. They don't make anyone to enter in the these ecosystem of the building and construction, and it takes a lot of hard work and network to get into it. Absolutely. So do send me a message. What sort of a startup that you're looking for to acquire and your ticket size or whatever. I can find it out on the network and I can probably connect you with several startups. Yeah, sure. See to it. Okay. Thank you. Right. Okay. Bye. Alright guys, so let me just save this session. इससे पहले कि ये hang हो जाए और ये सारा का सारा delete हो जाए जितना सारा कुछ था. So let me save this session on IGTV and I'll be right back. By the time, please join the WhatsApp group. There is a link in the bio. Do check it up. Do not forget to join the WhatsApp group. और मैं रोज भूल जाता हूँ, but मैं आज रात को जरूर तो जेफ बेसोस वाला भेजूंगा. मैं रोज बोलता हूँ, मैं रोज भूल जाता हूँ, बट मैं ये लाइव सेशन खत्म होती सबसे पहले I'll forward you that thing जेफ बेसोस का, और उसको जरूर रीड करना और 2 बार रीड करना. राइट. लेट मी सेव दिस वीडियो ऑन IGTV एंड आई विल बी राइट बैक. प्लीज सेव योर क्वेश्चन, और जिनको भी लाइव आना है आई टेक यू लाइव. लेट मी सेव दिस वीडियो एंड कम बैक राइट अवे. तब तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो. जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, देयर इज अ लिंक इन द बायो. आई विल बी राइट बैक. स्टे देयर.